और अभी हमारे साथ वी आर जॉइंड इन बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, यू आर लाइव ऑन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक भारत। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस मैम। और आज निर्मला जी, मुझे पता चला कि बहुत दिनों बाद, बल्कि मैं बोलूं वर्षों बाद, नमस्कार, कि आज हम आपसे हिंदी में भी बात कर पाए। यू आर गिविंग इंटरव्यूज इन हिंदी ऑल्सो मैम, दैट्स अ गुड न्यूज। नहीं तो आई स्टिल रिमेंबर द ओल्ड डेज जब हम आपको तंग करते थे एंड यू आर ऑलवेज से ऐश्वर्या, first in English, then in Hindi, first in Hindi, then in English. Thank you so much, ma'am. Today is a very happy day. I won't ask what the opposition is saying. Vipaksh abhi bhi wohi negative baatein kar raha hai. Today is a day where all of us feel proud. We are all happy. Ma'am, the Prime Minister said, प्रधानमंत्री ने मैम लाल किले से देश को अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात की. The third economy, the third largest economy in the world. Ma'am, how do you see this happening as the Finance Minister of India? Well, I suppose between 2014 and 19, a lot of groundwork was undertaken and completed as well. And between 19 and now, you see most of the schemes have reached a saturation level. If anything, let's say 3, 4, 5% gap is also being filled in. And that is why when we talk about aspirational districts, 115 of them, where Prime Minister himself monitored it every month through the Pragati program, so that every scheme reaches everyone who's eligible to get it, actually reaches at those levels for those aspirational districts which were a bit behind in terms of developmental parameters. Now that is achieved and we are going down further to the block levels. So all over the country, in the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, without letting out any one state or one region or one district for one or the other reason, saying it's not ruled by my party or it's not a party, it's not a region I see any potential, none of that. Every state, every region is given importance by the Prime Minister. And as a result, you've reached a certain level of basic amenities reaching the people. Now, after this, it's a question of taking forward further action so that economic activity in every one such a pocket, in whichever area they have had strengths, are given the necessary assistance. Give them fiber optic cables, make sure that electricity is 24/7, make sure that they are physically connected as well, if there are waterways, with waterways or by roads, by air connectivity and so on. So that the momentum for growth is given that kind of a stimulus from all the regions. So that's going on, and therefore we think it is possible to reach the 3rd rank. निर्मला जी, प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेवल्यूशन टू स्टेट गवर्नमेंट्स है वो 30 लाख करोड़ से अब 100 लाख करोड़ हो गया है। लोकल डेवलपमेंट स्पेंड अब 70,000 करोड़ से बढ़ के 3 लाख करोड़ हो गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग 90,000 करोड़ से अब 4 लाख करोड़ पहुंच गई है। यूरिया फर्टिलाइजर की जो 3,000 रुपए से अब कीमत 300 रुपए आ गई है। 10 लाख करोड़ की सब्सिडी है। लेकिन आई हैव टू आस्क यू मैम कि विपक्ष जो आपका ऑपोजिशन है वो अभी भी ये कहता है कि ये सारे नंबर्स हैं, बट देश के वित्त मंत्री के तौर पे डू यू सी दैट ये सारी चीजें आखिरी, जो आपकी पार्टी का भी मोटो है अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही हैं ये सारी स्कीम्स? आपका इस पे क्या कहना? आखिरी चीज आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, यही तो ना प्राइम मिनिस्टर का आंकड़ा रिवील कर रही है। वो सिर्फ आंकड़ा कहने में ऑपोजिशन क्या बोलने चाहते हैं, उनका मकसद क्या है? आंकड़े के द्वारा प्रूव करो बोलने वाले ऑपोजिशन, जब आंकड़े उनके सामने आ जाता है, अगर उनको उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो उस आंकड़े के साथ गांव-गांव तक कांग्रेस के वर्कर को भेजो, पता करो कि लोगों को मिला है कि नहीं मिला। उनको मालूम है जब वो एक स्कीम लॉन्च किया वो सिर्फ कागज तक सीमित रहे,
जब प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च करते हैं, मैम। सचमुच उनका लॉन्चिंग के समय से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तक उनके डायरेक्ट मॉनिटरिंग रहता है। इसीलिए व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी नंबर बोलते हैं, वो सचमुच ग्राउंड का नंबर है। आखिर नंबर देने वाले ग्राउंड में स्टेट्स है। जब अगर राज्य सरकार नंबर देती है और उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, चाहे आप वो आपका पार्टी हो, आप मतलब कांग्रेस पार्टी हो या कुछ और पार्टी हो, स्टेट और रीजनल पार्टी हो, वो नंबर देते हैं भाई। कोविड वैक्सीनेशन के समय आंगनबाड़ी वर्कर्स जब जाके वैक्सीनेशन डोर स्टेप में दिए जी, नंबर आखिर स्टेट के द्वारा ही पहुंचा हमें। सो नंबर के ऊपर अगर भरोसा नहीं है और विपक्ष जाकर हर राज्य में चेक करे क्या पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, जब तक वो करने का उनका क्षमता नहीं है, बात ना करना चाहिए। But Madam Finance Minister, ma'am, a safety net with Ayushman Bharat of 70,000 crores spent. Ma'am, financial security with the Prime Minister Kisan scheme 2.5 lakh crore dispersed. You mentioned about COVID, ma'am, more than 3 lakh crore in loans dispersed, saving them during COVID. I am saying, ma'am, for any country to spend and to achieve what they targeted was not easy post-COVID, but India has done it. But the whole irony is that the opposition, which seems to only and only concentrate on 24 elections, has completely forgotten that what good these schemes have been able to achieve for the people, to the point that they have come that calling the voter, ma'am, I'm asking you on the day of independence today, that the voter which votes for BJP, they are calling them demon. They have become so frustrated now, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए निर्मला जी कि वो वोटर को राक्षस बुलाने लगे। ऐश्वर्या, यू आर राइट। जब कोविड के समय मुफ्त का वैक्सीन केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजे, कांग्रेस शासित राज्यों उसको कूड़े में फेंक गए या उसका 1000 में बेचा गया था। सो मिसयूज करने में माहिर है कांग्रेस। जनता का वैक्सीन को मिसयूज किए, एक जगह पर 1000 को दे सोल्ड इट, दूसरे जगह पर कूड़े में डाल दिए वैक्सीन जब लोगों को जान का खतरा था। कांग्रेस का रवैया ये है। और दूसरा, कांग्रेस को मालूम है कि स्कीम इंप्लीमेंटेशन का विषय में कोई मोदी जी के सामने खड़े होकर के वो जो बोल रहे हैं वो गलत, ऐसे बोलने का किसी का दिल में खर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता बोल रहे हैं मुझे मिले, मुझे मिल गए, घर तक पहुंच गए, हमें राशन मिल रही है, बिजली आ गए घर में, सड़क बन गया मेरे सामने। ये बोलने वाले आम नागरिक है, उनको प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। इसीलिए उनके बौखलाहट के वजह से कल हरियाणा में कांग्रेस के एक नेता जो मोदी का वोट करेंगे वो राक्षस तुल्य है, ऐसे एक बयान दिया है। वोटर को राक्षस बोलने वाला उसी वोटर के सामने जाकर के कैसे वोट मांगेंगे? ये अलायंस जो डॉट 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 का अलायंस है, उनका कमजोरी यही है। जनता के सामने खड़े होकर के बात करने का कोई कुछ उनके अंदर नहीं है, सिर्फ नाटकबाजी। और उनके मुंह में ताला लगाना चाहिए ऐसे बात करने में। जनता को राक्षस बोलने वाला नेता राजनीति में आज तक है और दोबारा वो जनता के सामने खड़े होकर के वोट मांगेगा? जनता सबक सीखेंगे, जनता सबक सिखाएंगे। They will teach them a lesson. आपसे